नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। नमस्कार मित्रों, मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज बॉटनी के रिसर्च पेपर्स का एक रिव्यू पैनल हमने डिस्कशन के लिए बुलाया है। आप किया है ये मीटिंग। सबसे पहले जो हमारे पास पेपर आ रहा है उस पेपर की संख्या है 15064। मैडम, आप अपने पेपर के बारे में हमारे रिव्यू पैनल को बताइए और हमारे रिव्यूअर समय समय पे आपसे सवाल भी पूछेंगे, और अगर आपको भी अपनी किसी भी शंका का समाधान हमारे एक्सपर्ट से चाहिए हो तो वो आप उसको पूछ सकती हैं। तो आप प्लीज करिए। बहुत बहुत बधाई। So the topic of my research paper is rhizosphere soil analysis of some selected invasive exotic species from Ajmer region, Rajasthan. So for my study purpose, I had selected 3 alien species. One was Prosopis juliflora, second is Parthenium hysterophorus, and the third is Lantana camara. And these were collected from Ajmer region near BK Call area of Ajmer. And the main purpose of my study was to study the rhizosphere, the soil which is present nearby these plants. And the soil samples were collected from the rhizosphere of these selected species and were analyzed by different methods. And the tables have been given here, like for the pH, electrical conductivity, or organic carbon percentage, the presence of phosphate and potash was analyzed. Also, the presence of certain minerals, that is zinc, iron, copper, and manganese was analyzed. And it was concluded that the pH of the soil was normal and the organic carbon percentage, that is the presence of nitrogen in the soil sample, was quite low. Then available phosphorus was from low to medium level, and potash also was of medium level. And these parameters, they indicate that the deficiency of these elements might hamper the growth of the native plant. Then the analysis of micronutrients, some nutrients like zinc, iron, copper, and manganese, it indicates that the soil sample was deficient in moreover zinc as compared to the other nutrients. And like any changes, the studies as per the research carried out, it suggests that any the physical and the chemical influences as well as the changes in the soil conditions can have a big impact on the native plant species composition, and as a result, the natural vegetation in the area can be hampered. Thank you. This was the gist of my paper, briefing out. व्यूअर से निवेदन है कि क्या आपको इस पेपर पे कोई सवाल है? सर? Yes, ma'am. Paper is good, but there is some confusion about the basics of that
exotic species affected the soil rhizosphere. It is the but maybe there is any comparative study, means where is not the exotic species grow. That is what is the soil condition of that area? This is what has been, I suppose, shown in the two tables enlisted. The electrical conductivity, the soil samples were collected from the rhizosphere of the selected exotic species. And it has been, the result, the data has been tabulated. I'm sorry, I'm not able to understand you properly. Maybe please. My question is that exotic species affected the rhizosphere and the soil quality of that area is your work. But where is the comparative study? Means that other area is not affected. Means that is the real reason of exotic species or any other reason? No, it is the soil near those exotic plants was analyzed for different parameters such as pH, the electrical conductivity, and then the presence of nitrogen, phosphate, and potash ions, and also some micronutrients. So, as per my observations, research, the data has been formulated, tabulated, and so the soil samples, they were basically deficient in zinc, the rhizosphere of these alien plants, right? It was the soil samples were collected from one area itself, which is moreover near to my place. Your work is very authentic and there is real work, but my question is that means this soil quality is reduced in the rhizosphere due to exotic species. Yes, sir. But what is the condition of other area? Paper is good. Your work is good. Thank you, sir. Means जहां पर exotic species अभी grow नहीं की है, क्या वहां की जहां पर exotic grow कर रही थी, वहीं से rhizosphere से soil लिया है मैंने. I have not taken soil samples from any other area. Yes, ma'am. वही मेरा सब क्वेश्चन ये है कि आपका जो पेपर प्रूफ कर रहा है वो जो मैं कह रहा हूं वही आपकी बात में समझ गया हूं मैं कि आपका जो भी वर्क है, आपने जो राइजोस्फीयर में स्टडी की है वो आपका सॉइल में उसमें डेफिशिएंसी आई है, लेकिन डेफिशिएंसी किसके कंपैरिजन में आई है ये थोड़ा सा मुझे हल्का सा. वर्क इज गुड, नॉट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द वर्क. मींस इफ दैट इज द कंपैरेटिव स्टडी की ये जो डाउनफॉल आया है वैल्यूज में, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज है, फॉस्फेट है, जो भी आपने ये फाइंड आउट किया है, दैट इज ओनली वन सॉइल सैंपल आइदर ट्रिप्लिकेट दैट यू टेकन. बट व्हाट इज द कंडीशन की दैट इज द टोटल एरिया डेफिशिएंट और ओनली एक्सोटिक स्पीसीज डेफिशिएंट. ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया जा सकता था. अगले के लिए सजेशन मेरा बेटर ये आपके लिए रहेगा. ये पेपर तो आपका गुड है, मींस कंपैरेटिव ये आ जाए कि हाँ कि ये रीजन जो है वो एक्सोटिक स्पीसीज की वजह से है, बाकी एरिया में हमने ये कमी नहीं देखी. सर इसीलिए एक मैंने लास्ट में लिखा है कि एक लाइन लिखी है कि मोर स्पीशीज स्पेसिफिक रिसर्च वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन दिस कंटेक्स्ट in order to gain a better knowledge of the ecosystem processes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेरा सजेशन की ये कह रहा हूँ, that is not any question on your paper. That अगला ही वर्क आप ये अगर कर लें कि आप अदर सॉइल सैंपल भी कहीं से लेके और ये अगर कंपेयर कर ले कि यहाँ पे डाउनफॉल नहीं हुआ है और ये डाउनफॉल जो वैल्यूज में है वो केवल रीजन एक्सोटिक स्पीसीज की वजह से ही है, that will more authentic. A comparative study can be incorporated in another paper. Right, sir. I will try my level best to formulate another paper. Thank you, sir. Otherwise, any other question from the reviewer, ma'am? या इस पेपर को अप्रूव माना जाए? हाँ, अप्रूव तो माना जाए. इसमें एक दो रेफरेंसेस हैं, है ना, 2019 और 20 के, जिनका कि पीछे नहीं है, डिस्कशन नहीं हुआ है रेफरेंसेस में.
और अच्छा जी। रनिंग मैटर में है वो ऐड कर लें। और अच्छा जी। बहुत अच्छा पेपर है, वर्थ फॉर पब्लिकेशन है। और मेरे जी। पास जो प्रिंट आउट आया है उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इनकम्प्लीट है। ओके। मेरे हो सकता है कि मेरे भी ना हो, जो नहीं, टॉपिक ऐसा नहीं है, वो पेपर जो आपके पास आया है वही पेपर हम सब सारे लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि उसमें शायद मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज में कॉलम नहीं है, मतलब उसमें लिखा नहीं है शायद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज का अच्छा चैप्टर। एक बार हम फिर से लेने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो मैम इसको पेपर को देख रही हैं, हाँ। जो राइटर मैम है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको एक बार देख लें ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को, और जहां हो सकता है उसको ठीक कर लें। हाँ, वैसे बहुत ठीक है, अच्छा पेपर है, वर्क बहुत अच्छा है। और वो जो कंपैरेटिव है वो हाँ। मतलब किस चीज को बेस मान के किया है वो मिसिंग है थोड़ा सा, कि हाँ व्हाट इज द एक्चुअल सॉइल कंपोजिशन। तो वो जी, आगे के लिए ये इनकॉर्पोरेट कर लें, है ना। श्योर ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू मैम। मैं राइटर मैम से कहूंगा कि 3 बातों को ध्यान रख लें। एक तो रेफरेंस में मैम ने कहा रेफरेंस को ठीक कर लें, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को ठीक कर लें, और तीसरा अपने अगले पेपर में मैं दोनों रिव्यूअर से ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें तो कंपैरेटिव स्टडी डालने की आवश्यकता नहीं No, no, है, no, no, लेकिन no, no. जो अगला पेपर डालें Paper is उसमें आप approved. कंपैरेटिव Paper ऑफ is द स्टडी approved. डालें तो और ज्यादा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। I have already approved that paper in my report. गुड 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 थैंक यू गुड। थैंक तो यू। That is suggestion for ठीक the है, next तो paper. That is a big. जी जी जी, तो थैंक यू मैम। आप चाहे तो हमारी अगले डिस्कशन के लिए रुक सकती हैं, आप उसमें भी भाग ले सकती हैं, अदरवाइज जी 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 प्लीज। सर मेरे को एक बार मैम से बात करनी थी, रिव्यूअर मैम से। मेरे को थोड़ा जी। सा मैम आप वापस गाइड करिएगा, ये आपने जो रेफरेंसेस में बोला, कौन सा पॉइंट रेफरेंस का नीड टू करेक्ट? एक बशीर एटाल है 2019, फर्स्ट पेज पर ही है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, और मंसूरी अच्छा, review of- 2020 ओके, जो रिव्यू लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट में पेज, नहीं है, वो यही कह रही रेफरेंसेस हैं? में नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। रेफरेंसेस में नहीं है, तो रनिंग जो मैटर रिव्यू आप में है। अच्छा जी, जो रिव्यू आप लिटरेचर में आपने बशीर- दिया है उसको रेफरेंस में आप और डाल लीजिए। बशीर एटाल, और दूसरा कौन से बोले मैम? दूसरा मंसूरी एटाल, अच्छा ओके, मंसूरी मंसूरी, जी। ओके ओके जी एटाल, हाँ, ओके। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को इसको और देख लीजिए, अदरवाइज ये पेपर हाँ। आपका बहुत अच्छा है। आपको एक अच्छे से पेपर के लिए बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि Thank हमारा you. ये डिस्कशन आपके भी बहुत काम आया होगा।